Real life. Good evening, everyone. Welcome to Music Veranda, the virtual veranda of love, happiness, innovation, sharing, caring, learning, a lot of music and music. I'm Manya Udupi, a student of 12th from Bengaluru, India. I'm feeling privileged to initiate this evening session of Shamki Chai at Veranda. I would like to welcome all the FB viewers who have logged in from different cities, towns, villages, and people from different countries. It's beautiful to have you all in this platform. At Music Veranda, we initiated a talk session, Meri Geeton Mein Meri Kahaniyan Hain, where a vocalist, artist share his or her journey with a music lover. In today's session, we have Deepak Desar from the Manade family, a tourism and a marketing professional by profession and a very, very beautiful singer by passion. He will share his journey with Anila Rampuria ma'am from Delhi, India. Anila Rampuria ma'am is a management and finance professional and a mentor to ventures, entrepreneurs, and initiatives. One of her initiative is also our Music Veranda. Since Music Veranda is an initiative in quarantine and we touch one aspect, taking that ritual, I would like to share a song message through a song, especially for the two honored people who are so full of life and live each moment. I'm gonna sing Dil Hai Chota Sa from the movie Roja. Hope you all like it. दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा. Thank you so much. Over to Anila ma'am. All the best. Wow, thank you so much, Manya. And we are so honored that people so talented and young people like you are introducing us. And it is really nice to hear your profile being spoken, you feel like celebrity. And I'm actually feeling so honored to hear my profile. So Deepak, I'm sure you must be enjoying it too, right? Yes, definitely. So, Thank you so much. Yeah. So in today's session, we have Deepak. And Deepak, as Manya has already told so much about him, तो मैं ये बस बताना चाहूँगी दीपक से मैं कनेक्टेड कैसे हुई. तो दीपक हम लोग अपने सोसाइटी में एक प्रोग्राम कर रहे थे और वहाँ पे हमारे मेरी एक फ्रेंड है कल्याणी, उसमें कल्याणी ने बोला कि एक मेरे रिलेटिव हैं दीपक जी, वो बहुत अच्छा किशोरदा का गाना गाते हैं. So I contacted Deepak, and Deepak, he was really humble, and he came to the society and he performed. Initially I thought कि 2-3 गाने ही शायद perform करेंगे, लेकिन उनको इतना पसंद किया गया कि whole evening was dedicated to Deepak. So that is how I got in touch with Deepak. उसके बाद मेरा जैसा पैशन था म्यूजिक और कनेक्शन को साथ रखने का, so I music connect कुछ हुए तो दीपक को मैंने घर पे इनवाइट किया म्यूजिक कनेक्ट्स में, and he was always very enthusiastic. He used to take initiatives, come fully prepared. That was one thing. He was always fully prepared with his numbers, with his everything. So उसके बाद आई हैड अ व्हाट्सएप ग्रुप कॉल्ड कनोजियरिंग म्यूजिक, उसमें मैंने दीपक को ऐड किया. फिर दीपक वाज इन टच इनिशियली, बट उसके बाद I lost we like Deepak was silent, he was in the group but he was not messaging or anything. I said चलो पता नहीं क्या हुआ है, क्यों नहीं मैसेज कर रहा है. फिर जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सडनली दीपक के गाने आने शुरू हो गए, थोड़े थोड़े गाने आने शुरू हो गए. उसका आई पब्लिश दिस ऑन स्टार मेकर. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू म्यूजिक वेरांडा. तो जब म्यूजिक वेरांडा का थॉट मेरे मन में चल रहा था, थोड़ा प्रिविलेंट हुआ, तो एक दिन गाना आया, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं. तो मेरे को थोड़ी सी शायद क्लैरिटी मिली होगी. उसके बाद नेक्स्ट डे दीपक ने गाना भेजा, राह में चलते हैं. And third day he sent this song on that Conversing music group. That song was कुछ तो लोग कहेंगे.
और उसी दिन शाम को हम लोगों ने म्यूजिक वेरांडा, जो हमारा जूम मीटिंग था, all of us were there and Deepak was also part of it. So that is the reference of Deepak's number in inspiration of music veranda. So thank you so much. मेरे को उस टाइम तो समझ में नहीं आया था कि ये क्या मतलब, लेकिन आज मैं सोच रही थी तो ये सब कनेक्ट हुआ और मैं आज समझ पाई कि ये इम्पोर्टेंस है दीपक की म्यूजिक वेरांडा के फॉर्मेशन में, उसके गानों की. सो दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ दीपक. सेकंड एस्पेक्ट इज दीपक का जो म्यूजिक वेरांडा में है, ही इज ऑलवेज रेडी. उसकी कोई भी आप फरमाइश करेंगे, ही इज ऑलवेज रेडी विद फरमाइशें. और हमारे ग्रुप में एक रेनू जी हैं, वो शायद चुन चुन के गाने ऐसे लेके आती है जो हमने कभी सुने नहीं है, लेकिन दीपक he is always ready with the number, you know, अगले दिन या उसी दिन शाम को he is ready with that track. So that's something which I really like about Deepak. He will always, whatever challenges, उसको करना ही करना है दीपक को. And one more thing, विनीत पंछी जी आए थे हमारे प्रोग्राम में and he requested Deepak to sing this song, राह में चलते हैं, लेकिन उस टाइम दीपक के पास वो ट्रैक नहीं था. So दीपक ने उसके बाद वो ट्रैक रिकॉर्ड किया. इनफैक्ट ही रिकॉर्डेड इन हिज कार चल रही है और उन्होंने रिकॉर्ड किया, एंड वाज सो ब्यूटीफुली रिकॉर्डेड, एंड देन ही सेंड टू विनी जी, और वो गाना अब हमारे वेरांडा का एंथम बन गया है. सो दीपक, आई वुड रिक्वेस्ट to tell you to sing that song because that's the anthem and Deepak sings beautifully. So over to you, Deepak. Are you there, Deepak? Yes, very much. Thank you so much, Anila ji. And I'm really thankful to Music Veranda, जो मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज टॉक शो दे सकूं. और इस टॉक शो में जो सभी लोग आज बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, बिसाइड्स जो मेंबर्स हैं, करीब करीब हमारे 40 मेंबर्स हैं, एक्टिव इनएक्टिव, सब लोगों ने बहुत मेरे का हेल्प किया है, मुझे अप्रिशिएट किया है, जिस कारण से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि मैं एक टॉक शो दे सकूं. वैसे मेरी इतनी औकात नहीं है. सो थैंक यू वेरी सो मच टू दी ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड दी वरांडा. और मुझे इनकरेज करने वाले कोई और नहीं है, म्यूजिक वरांडा का जो मेंटर है मिसेस अनिल रामपुरिया जी, उनका बहुत बड़ा हाथ है. उन्होंने मुझे एक एहसास दिया कि दीपक आप बहुत कुछ कर सकते हो इस फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में. तो उनकी जो मोटिवेशन है, उनकी जो इंस्पिरेशन है, उनकी जो पुश है, उसके कारण मैं यहाँ तक आज पहुँच पाया हूँ. और मुझे उम्मीद है आगे ऐसे अगर मेरा साथ रहा, उनका साथ रहा, तो बहुत आगे हम पहुँच सकते हैं म्यूजिक वरांडा को आगे लेके. सो मैं सबसे पहले एक गाना गा के सुनाऊंगा जो अनिल जी ने अभी रिक्वेस्ट किया है, राह पे रहते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बहुत दिल के करीब भी है. सो आई विल टेक फ्यू सेकंड्स टू सेट अप द ट्रैक. या थैंक यू सो मच. Here I go. ओ राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन. ओ हम तो सफर करते हैं, राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन. ओ हम तो सफर करते हैं. जल गए जो धूप में तो साया हो गए, हो जल गए जो धूप में तो साया हो गए. आसमां का कोई कोना ओढ़ा हो गए, जो गुजर जाती है बस हो उस पे गुजर करते हैं. राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन. ओ हम तो सफर करते हैं.
Brilliant, beautiful, and you so much. this song in itself is so beautiful, and you have sung it so well, and you sing it so well. Thank you so much, Deepak. Okay, so that was वो प्रोफाइल जो मैंने अपने कनेक्शन के बारे में बताई थी आपके साथ. Now I'm just going to speak about your profile in a formal way. So Deepak Day is a tourism professional in a British company. He's a motivational speaker, a life coach, an athlete, and a wonderful person. So Deepak, the first question to you in this talk session is, please tell us something about your musical journey. Over to you, Deepak. थैंक यू सो मच अनिला जी. ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है और मैं बहुत सिंपलिसिटी के साथ इसको एग्जैक्टली वही बताऊंगा जो कि रियल है. ठीक है, बनावटी मैं नहीं बोलूँगा. और ये बात है करीब करीब, अगर जहाँ तक मेरी याददाश्त है, करीब करीब 6 साल का जब मैं था, और समर वेकेशन में अक्सर हमें नानी के घर और दादी के घर ले जाया करते थे. पर मुझे जो जाने का मौका मिला वो मेरे मौसी के घर में. पापा मेरे बुआ के घर में भी ले जा सकते थे, पर उनका घर थोड़ा सा दूर था. हम जहाँ पे रहते थे, असम में एक जगह है न्यू बंगाईगांव, वहाँ से काफ़ी दूर है, पर कलकत्ता हमारे से पास पड़ता है. पापा रेलवे में थे तो उनको पास फ्री मिलता था. और मौसी के घर के सबसे जाने का सबसे अच्छा कारण है कि सब कुछ फ्री में मिल जाता था. और आदर लाड प्यार तो आप पूछिए मत, बड़ी मौसी के घर में, है ना. सो उनके 4 बेटे हैं और 1 बेटी, सबकी शादी हो चुकी है आज के डेट में. पर उनको जो है ना कुछ गाने वाने का शौक था, बिकॉज बंगाल के हैं, ऑफकोर्स घर घर में गाने का प्रचलन है. सो उनको कुछ गाने सुनने का बड़ा शौक था. और न जाने क्यों वो मेरे से गाने के फरमाइश करते, जबकि उनको भी नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था कि कुछ गाना भी मैं गा सकता हूँ या गाता हूँ. पर क्यों न जाने क्यों कर भाई कुछ गाने गा के सुनाओ, एनीथिंग, बांग्ला हो, हिंदी हो, कुछ भी. सो वहां से मेरी शुरुआत हुई, जहां तक मैंने बोला कि जहां तक मेरी याददाश्त बचा हुआ है. सो उन दिनों में क्या था, ये मैं अगर बताऊं सन, ये था सन करीब करीब 1977-78 की बात है. सो जब मैं गाना गाता था उनको बहुत पसंद आता था. जैसे भी मैं गाना गाता था तो वो लोग ना मेरे को कभी 5 पैसे दे दिया, कभी 10 पैसे, कभी 20 पैसे. आप लोगों को सुनकर लग रहा होगा 5 पैसे उन जमाने में, आप लोगों ने शायद कभी देखा भी नहीं होगा, पर मैंने देखा है, मैंने यूज भी किया उस चीज को. सो ऐसे 5 पैसे 10 पैसे हमें मिलते होते थे. और मेरे पापा कहते थे एक काम करो, ये तुमसे गुम हो जाएगा, सो मैं रख लेता हूँ, और जब भी तुम्हें मन करेगा शाम को या 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम मार्केट चलेंगे, मैं आपको कुछ खाने का, मिठाई वगैरह मैं कुछ भी खिलाऊंगा आपको. मैंने कहा ठीक है. मैं मतलब भोला था, मुझे मालूम नहीं था कि मतलब क्या पापा बोल रहे हैं, असल में उनके मन में क्या बात है. सो ऐसे कुछ पैसे जब इकट्ठा हुए, 2-1 रुपए जो इकट्ठा हुए ना, मैंने बोला पापा चलते शाम को कुछ खा के आते, मिठाई खा के आते, मुझे रसगुल्ला बड़ा पसंद है बंगाल का. सो पापा ने बोला ठीक है चलते हैं चलते हैं. ऐसे करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता निकाल दिया. तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों कर रहे, डिले क्यों कर रहे हैं. तो पता चला जब मैंने उनसे पूछा कि पापा वो जरा चलते हैं मिठाई खाने, कहता है वो पैसा ना मेरे पास नहीं, मैं खर्चा हो गए. मैंने पूछा आप क्या किया, आप खर्च क्या, कहते हैं मैंने पान खा लिया. मैंने कहा, फिर मुझे बहुत बुरा लगा. मैं कहा कोई बात नहीं, पापा ने पान खाया, उनका शौक पूरा किया, कोई बात नहीं. सो ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़े. हाँ, तो हर साल लगभग हमारे समर वेकेशन में हम लोग वही कलकत्ता में जाते थे और वेकेशन मनाने. वहाँ से कुछ गाने गाते थे, कुछ मस्ती करते थे, कुछ पैसे वैसे कमा के जो कि पापा ने खर्चा कर देते थे. सो ये मेरी शुरुआत की कहानी है. सो ऐसे करते 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 मैं बड़ा हुआ. एक और मैं वाकया बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है. आप लोगों ने देखा होगा, शायद सुना भी होगा, रिकॉर्ड प्लेयर, ग्रामाफोन, जैसे माइक से होता था रिकॉर्ड प्लेयर. तो मेरे करीब करीब 1 किलोमीटर दूर हम जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे हमारे एक भैया थे, उनके पास वो रिकॉर्ड प्लेयर ग्रामाफोन था. और मुझे तब तक शौक चढ़ चुका था गाना गाने का. तो मैं जो है नंगे पाँव भाग भाग के उनके घर में जाता था, रिकॉर्ड प्लेयर चला के गाना गुनगुनाने का, किशोर कुमार का. सो एक बड़ी अच्छी याददाश्त मैंने आज ही सुबह सुबह मेरे को जहन में आया कि मैं आपसे शेयर करूं. तो ऐसे करते 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 बड़ा हुआ मैं, ऑन एंड ऑफ गाना गाता रहा. फॉर्मल कभी हमने ट्रेनिंग नहीं ली, मौका नहीं मिला किसी भी कारण से जिंदगी के जद्दोजहद में. फिर मैं एक बिजनेस पीछे कर रहा था, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस. वहाँ पे एक ट्रेनिंग होती थी उन दिनों में, 36 आवर्स का, 36 घंटे का ट्रेनिंग हुआ करता था. और पहले दिन जब ट्रेनिंग खत्म होती थी करीब रात को 8 बजे, सो 8 से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक एक डीजे शो या क्यों कह सकते हैं म्यूजिकल शो होते थे, कि रिलैक्स करने के लिए, 7 दिन के थकान के बाद थकान उतारने के लिए. सो ड्यूरिंग द डिनर टाइम वो लोग डांस करते थे, म्यूजिक चलाते थे. सो मेरे में एक इशू थी कि मेरे को डांस करना बिल्कुल नहीं आता. मुझे देखना अच्छा लगता है पर डांस मैंने अभी किया नहीं, ना ही कि मैं कभी कर पाऊंगा, ऐसा मुझे महसूस है. पर गाने की जो ललक थी अंदर ही अंदर, वो मेरे को ना घूट रहा था, जैसे कि भाई सब लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा गाने का शौक है, क्यों ना मेरे को मैं गाना गाऊं. तो मैं बहुत हिम्मत करके, बहुत ज्यादा हिम्मत करके, मतलब छाती में दुख दुखी हो रही थी, भाई पता नहीं लोग क्या समझ में क्या सुनेंगे, पता नहीं गा भी पाऊंगा नहीं गा पाऊंगा.
तो मैं बहुत हिम्मत करके मैं डीजे वाले भैया के पास पहुंचा। मैंने पूछा, भैया कि आपके पास वो माइक्रोफोन है? कहता हाँ जरूर है। क्या करेंगे? कहता मुझे ना कुछ बताना है, कुछ बोलना है एज ए क्राउड को। कहता अच्छा ठीक है, शुरू करिए। तो लकीली क्या हुआ, उनके पास लैपटॉप था और लैपटॉप में वो ट्रैक जो होती है कराओके ट्रैक्स वो मौजूद थे। तो मैंने बोला किशोर कुमार का आपको जो अच्छा लगे ट्रैक वो लगा दीजिए। सो ये मेरी किस्मत थी कि जो ट्रैक उन्होंने लगाया था दैट इज वन ऑफ माय बेस्ट किशोर कुमार का ट्रैक, जो था कि पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। 12 मिनट का गाना है, मेरा बहुत दिल के करीब है। सो वो गाना लकीली उन्होंने बजा दिया, पता नहीं क्या उनको समझ में आया, तो मैंने कहा यह तो मजा आ गया। फिर मैंने उस गाने को गाया और ऐसा गाया बिल्कुल बिंदास, मुझे पता ही नहीं कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, इतना जबरदस्त मैंने उसको गाया मेरे हिसाब से। और लोगों ने प्लेट छोड़ के, जो खाना खा रहे थे, डांस छोड़ के सारे ऐसे मेरे को देखने लगे, ये दीपक क्या कर रहा है, कैसे, हाउ। सो अचंभा हो गए सभी लोग। वहां से मुझे एक पुश मिला कि शायद मेरी आवाज अच्छी है और मुझे इस फील्ड में कुछ और करना चाहिए। ऐसे करते करते कुछ वक्त और गुजरा। अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, बहुत इंटरेस्टिंग सी और कहानी है 1 मिनट की। फिलिप्स जो इंडिया है, फिलिप्स इंडिया ऑडियो सिस्टम में डील करती थी उन दिनों में। तो प्रगति मैदान में इनका डिस्प्ले हुआ करता था कराओके सिस्टम का, वहां से मुझे ऑफर मिला था 14 डेज उनका जो कराओके सिस्टम उसको डिस्प्ले करने का, कुछ गाने गाने का। वहाँ पे भी मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एक सर्टिफिकेट भी मिला, कुछ पैसे भी मिले प्रोत्साहन के तौर पे। सो ऐसे करते करते मैं आज इस प्लेटफॉर्म में हूँ। और फिर म्यूजिक वरांदा मेरे सामने आया, अनिला जी सामने आई, और मुझे यहाँ से जो पुश मिला, जो मोटिवेशन इंकरेजमेंट मिला, दैट वाज ट्रिमेंडस, जिस कारण से आज मैं कुछ बोलने के काबिल बन पाया हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन अनिला जी, इट वाज रियली having a good wonderful time with your music veranda. Thank you so much. Right. दीपक, योर स्टोरी सो इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ रहा था सुन के। और आपने जो डिस्क्राइब किया ना, वी वर एक्चुअली इनटू दैट, वी वर इमेजिनिंग आपका एक्सप्रेशन क्या होता होगा जब आपके पापा पान खाते होंगे उस पैसे का, तो क्या खुंदक वाला एक्सप्रेशन होता होगा। सो आई कैन वेल बिल्कुल, इमेजिन दैट, यू नो। बट बच्चा था, ठीक, कोई बात राइट। नहीं। दीपक, आप वैसे सब गाने हर तरह के बहुत सुंदर गाते हो। आई हर्ड यू सिंगिंग अपार्ट फ्रॉम किशोर दा, बट किशोर दा के गाने आप सबसे ज्यादा गाते हैं। तो किशोर दा इज योर रोल मॉडल और हैज ही इंस्पायर्ड यू, एंड लाइक व्हाई इज इट दैट यू सिंग किशोर दा सॉन्ग मोर देन एनी अदर सिंगर? फिर से बोलूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका अगेन जवाब बहुत सिंपल है मेरे लिए। मैंने जब होश संभाला, इस गाना गाने का जब सिलसिला चालू हुआ, मुझे न जाने क्यों किशोर कुमार के ही गाने सुनने का मौका मिला। दूसरी बात है, किशोर कुमार की जो कुछ खूबियां मैं बताऊंगा अभी आगे चल के, पर सबसे अच्छा जो मुझे लगा, उनको बहुत सिंपल वे में बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रेशर पे कुछ भी गाना गा देते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात क्या है, उनकी जो गाने का जो सफर है, जो म्यूजिक सफर है, और मेरा सफर तो कुछ भी नहीं था उसके उनके मुकाबले में, पर कहीं ना कहीं मैं रिजेंबल करता था कि उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग कुछ भी नहीं हुई थी जहां तक मुझे पता है। तो बस बाय डिफॉल्ट उनको अच्छा गाना आ गया। उनके पीछे एक स्टोरी भी है, जैसे उनके बड़े भाई अशोक कुमार जी बताते थे, एक दिन क्या हुआ था, उनके पाँव में चोट लगी थी, बहुत भयंकर चोट लगी थी, जिस कारण उनके पाँव में घाव हो गया था। और उस घाव होने के कारण इतने ज्यादा उनको पेन होता था, वो 24/7 रोते थे। और जब इतना ज्यादा पेन में ना, वो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोते थे, इतना ज्यादा रोते थे, करते करते उनका गला बैठ गया। और ऐसे रोते करते करते गला बैठते उठते, बैठते उठते 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 उनका गला एक दिन खुल गया, बुरी तरह से खुल गया। उस दिन से लेके किशोर कुमार के जिंदा रहने तक उन्होंने जो करामात किया, हम सब गवाह है। और मेरा ये मानना है, उनकी जो वर्सैलिटी है, जो जीनियसनेस है, वो अभी अनटच्ड है, कोई उसको छू भी नहीं सकता, उनके आधा भी नहीं पहुंच सकता। मेरी कोशिश ये है कि उनको मैं फॉलो करता हूँ, और शुरू से फॉलो करता हुआ उनके गानों के ऊपर मैं गाना गाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा सुकून मिलता है। और इसी कारण से मैं उनको फॉलो करता हूँ। वो मेरे एडमायरर है, मैं उनके एडमायरर हूँ डेफिनेटली, और वो मेरा रोल मॉडल है। और इसके अलावा मैं सभी के गाने सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रफ़ी साहब है, मोहम्मद अजीज साहब है, मन्ना डे है, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। पर जो बात किशोर कुमार जी में है, मैं माफ़ी चाहूँगा, और किसी में अभी तक मैंने वो चीज़ नहीं देखी। तो इसी कारण से वो मेरे रोल मॉडल है और हमेशा रहेंगे। थैंक यू सो मच। कुछ गाने हो जाएं दीपक, हाँ लेट दिस ज़रूर, इवनिंग बी म्यूजिकल, संडे इवनिंग। ज़रूर ज़रूर। या सो जैसे श्योर। कि मैं ट्रैक के साथ कुछ गुनगुनाने का प्रयास करूंगा, सो मुझे कुछ सेकंड्स चाहिए, ठीक है? सो गिव मी जस्ट 2 seconds प्लीज। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग।
ये बहुत अच्छा एक नंबर है फ्रॉम द मूवी जवानी दीवानी, और गाने के बोल है सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल। आशा करता हूँ सबको पसंद आएगा। सो हियर आई गो, या वन मोमेंट। सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। पर बातें मुलाकातें हमसे भी तो होगी, अरे हमसे भूलेगी वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। रहना है यहाँ तो दोनों है जवा तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। रहना है यहाँ तो दोनों है जवा तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है वो हम भी कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। ला 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 ला। सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। क्या बात दीपक, ऑसम, मजा आ गया। आई एम Thank you श्योर so एवी पे जो लोग सुन रहे होंगे दे मस्ट बी रियली एंजॉयिंग दिस सॉन्ग। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और बहुत मजा आ रहा है। ओके, सो मूविंग अहेड ऑन आवर टॉक सेशन, आई थिंक आप क्वारंटाइन या लॉकडाउन के पहले आप अपने काम में बहुत व्यस्त थे, यू नो, because you were not responding to any of the music, you know, म्यूजिक कनोजियर ग्रुप में भी आप काफी साइलेंट थे। तो ऐसा क्या हुआ लॉकडाउन में जिससे कि आप वापस म्यूजिक से कनेक्ट हुए? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि पैशन और प्रोफेशन, यू नो, दीज आर टू बिग थिंग्स, ओके, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। आपके लिए मेरे को लगता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा था। आपने एक बार बोला था आपके 24 घंटे आपके अंदर गाना चलता रहता है, राइट? So I would like to understand ये passion और profession आप balance कैसे किए, क्या, how did it all happen? Thank you again, very interesting question. देखिए, पैशन जो है तो मैं समझता हूँ, अगर वाकई में अंदर से लगन है, अंतरात्मा से इच्छा है, जैसे बोलते हैं ना, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट एंड सेल्फ कमिटमेंट, ये दोनों वर्ड बिल्कुल सुनने में एक ही तरह लगता है, but there's a vast lot of difference between commitment and self commitment, determination and self determination. So कहीं ना कहीं through this journey, जैसे मैं म्यूजिक बरामदा से कनेक्ट हुआ, मुझे लगा वो इतने प्रीवियस जो मुझे मोटिवेशन मिली थी, जो लोगों ने मेरे को सराहा है इस म्यूजिक के फील्ड में, मुझे लगा मुझे इस फील्ड में कुछ हासिल करके रहना चाहिए। विथ ऑल ऑड्स और ऑल थिंग्स अगेंस्ट मी, अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा एग्जैक्टली हाउ आई स्पेंड माय 24 आवर्स, सो यू विल इमेजिन कि दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू डू म्यूजिक एज वेल एट द सेम टाइम। सो ये मेरा बहुत ही दृढ़ संकल्प था, दृढ़ इच्छा थी मन से कि मैं म्यूजिक में कुछ करूं, बहुत कुछ करूं, विद द सपोर्ट ऑफ एवरीबॉडी। बट समहाउ बहुत लोगों ने मेरा साथ छोड़ा बीच में, पर मैं अपने आप का साथ कभी छोड़ा नहीं है। और with the help of Music Veranda, with the help of my
मेंटर फ्रॉम म्यूजिक वरांडा मिसेस अनिला रामपुरिया जी। मैं इस मुकाम पे आज हूँ कि मैं कुछ गुनगुना सकूँ आपके सामने। सो मैं थोड़ा सा मेरी ज़िंदगी के मैं पीछे ले जाऊँगा, थोड़ा शेड्यूल बताऊँगा आपको, तो आपको थोड़ा सा महसूस होगा एग्जैक्टली अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अगर मन में संकल्प लिए बैठा हो तो। आई गेट अप एट 5:15 इन द मॉर्निंग, नो मैटर व्हाट। सातों दिन, मेरे कोई संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे नहीं है, मैं 5:15 सुबह उठता हूँ। और मजे की बात है, अलार्म तो 5:15 की लगती है, पर मैं पौने 5 बजे उठ जाता हूँ। मैं वेट करता हूँ अलार्म बजे तो मैं उठूँ, और 5:15 से लेकर रात को करीब करीब पौने 12 बजे तक मैं कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ। और इन बिटवीन 24/7, अगर मैं यूं कहूँ, जो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे जहन में हमेशा कुछ ना कुछ गाना बजता रहता है, वो भी किशोर दा का। बैक ऑफ माइंड हमेशा चलता रहता है, मैं ऑफिस का काम करूँ, मैं किचन में कुछ करता हूँ, मैं कपड़े धो रहा हूँ, कई बार संडे को धोना पड़ जाता है, वट एवर आई डू, राइट। हर वक्त मेरा गाना गाना जो मेरा बैक ऑफ माइंड चलता रहता है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिवाइन से मेरे को एक पावर मिली हुई है, और डिवाइन ये कह रहा है, सृष्टि ये कह रहा है कि तू कुछ कर इस फील्ड में। सो इसी तरह से मैं देखता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल हो रहा है। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ, जैसे अनिल जी ने बताया कि मैं ट्रैवल प्रोफेशनल्स हूँ, मैं एक ब्रिटिश कंपनी में जॉब करता हूँ इन सेल्स, जहाँ मेरी जो जो टाइमिंग्स है वो इंडिया टाइम जो है 12:30 बजे दोपहर से लेकर 9:30 बजे तक। सो 9:30 बजे जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही मैं लॉग इन करता हूँ म्यूजिक वरांडा में। हमारा रोज का शो होता है जो कि 9:30 से 10:30 तक चलता है। सो फ्रॉम 5:15 इन द मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, फ्रेश होके मैं सबसे पहले मैं थोड़ा सा रियाज करता हूँ इस गाने की फील्ड में। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ, बिकॉज फिट रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लोग कहते हैं कि सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है, सभी को पता है, दुनिया में सबको पता है, पर विडंबना यह है कि 0.1% लोग भी नहीं करते हैं। सो जानना बड़ी बात नहीं है, मानना बड़ी बात है। तो मैंने माना है कि ये मेरी सेहत की बात है कि मेरे को फिट रहना है। अगर मैं फिट नहीं रहूंगा तो ये जो मैंने 18-19 घंटा जब मैं काम करता हूँ वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा इस उम्र में। आई एम रनिंग 48+। एंड अगर मेरी यहाँ पे देख रहे हैं, सारे ब्राउन हो चुके हैं, वाइटिश हो चुके हैं, राइट। सो व्हाट यू कॉल, सो वो सेशन करता हूँ मैं करीब करीब 7:45 मैं फ्री होता हूँ मेरी अपनी सेशन से। उसके बाद मैं किचन में आता हूँ, वाइफ को हेल्प करता हूँ। शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, शी इज़ बेसिकली MBBS MD, शी इज़ वर्किंग फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और हेड ऑफिस, इंडिया के हेड ऑफिस है कश्मीरी गेट में, वहाँ पे वो जॉब करते हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर। सो उनको किचन में हेल्प करता हूँ, फिर वो चली जाती है, फिर बाकी जो काम है वो समेटता हूँ मैं किचन में। फिर बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना, उनके स्कूल के ब्रेकफास्ट के लिए रेडी करना वगैरह, जो भी पूरा हेल्प करता हूँ। फिर उसके बाद घर में जो भी काम होते हैं, काम वाली आती है, 2 काम वाली, खाना बनाने वाली, प्लस जो भी और बाकी जो होते हैं, उसके बाद कपड़े धोना, फिर करते करते करीब करीब 12:15 बज जाता है। फिर मैं लॉग इन करता हूँ, फिर 9 आवर्स मेरा ऑफिस का काम चलता है। उसके बाद 1 घंटा म्यूजिक सेशन चलता है, फिर देन कुछ चिट चैट होती है, फिर देन आई गो टू बेड नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट 5:15। सो मैं कोर बिल्कुल बैक टू बैक, मेरा ऑन द टोस मेरा सब कुछ चलता रहता है। सो जैसे आपने बताया कि बैलेंस करना प्रोफेशन और पैशन, ये इतना आसान नहीं है। सिर्फ बात है दिल से, अगर आपको दिल से निकलती है कुछ काम करने का, कुछ जज्बा है कर गुजरने का, तो सब कुछ पॉसिबल है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम। क्योंकि टाइम एक ऐसे फैक्टर है, आप टाइम को बढ़ा नहीं सकते, टाइम को खरीद नहीं सकते। आप कितना भी बेशुमार दौलत क्यों ना कमा ले, कभी टाइम आप खरीद नहीं सकते। एक इंसान की जिंदगी में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, हर सेकंड कीमती है। उसी को इस्तेमाल करके जो बिग शॉट्स है दुनिया के, वो लोग करोड़ों कमाते रोज, और उसी को इस्तेमाल करके एक आम इंसान 1000 भी नहीं कमा पाते। सो बात है हाउ यू मैनेज योर टाइम। सो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, विद एवरीबॉडीज ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट्स मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ। स्पेशली माई वाइफ हैव बीन सपोर्टिंग अ लॉट, and also my kids. So thank you so much, Anila-ji, for your good question. Wow, that was wonderful. So you are a motivational speaker and you have actually motivated us. So that's wonderful how you balance time, because it is very important aspect of anyone's life. So Deepak, since you're a tourism professional, तो रास्ते के गाने आप बहुत गाते हैं, मुझे पता है। तो कोई रास्ते वाला गाना, सफर वाला गाना, वो सुनाइए आप। जी जरूर। श्योर। एक बहुत अच्छा गाना मुझे मेरे जहन में आ रहा है, मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी इज़ माई सिस्टर एज वेल, मुँह बोली बहन है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, मेलबोर्न में, एंड शी इज़ रनिंग ए फूड चेन एक्सेप्शनली वेल शी इज़ डूइंग। सो 2 दिन पहले उनका टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन हुआ है, शी इज़ ऑन द बेड नाउ।
सो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम्हारे शो में ये गाना मेरे को डेडिकेट करना है, तो मैं ये गाना उनको डेडिकेट करना चाहूँगा. So with your permission, right? Thank you so much. Give me just a few more seconds, please. Sorry. किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, मिलो है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भर आई. ओ किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई. कोई भी साया नहीं राहों में, कोई भी आएगा ना बाहों में, तेरे लिए मेरे लिए कोई नहीं रोने वाला, झूठा भी नाता नहीं चाहों में, हाय तू ही क्यों डूबा रहे आहों में, कोई किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, कोई नहीं जो यूं ही जहां में बाटे पीर पराई. हो किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई. क्या बात है दीपक, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, बहुत सुंदर. दीपक, मैंने अभी कर्टेन हटाया और शाम मस्तानी है, तो इसको और मस्ताना करिए ना प्लीज अपने गाने से. जरूर. थैंक यू सो मच अनिला जी. मैं देखता हूँ अगर मेरे पास ये ट्रैक पड़ी हुई है. सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सिंग इट फॉर यू. वन मोमेंट. या होल्ड ऑन. Deepak, I can't hear you. शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा. ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा. दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं. ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए. शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई
शाम और मस्तानी हो गई ये गाना सुन के। और so much. Thank you. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग वरांडे की टॉक है, फॉर्मल नहीं है, तो आई कैन एक्चुअली एंजॉय योर सॉन्ग। सो दिस वेरी नाइस थिंग अबाउट वरांडा टॉक कि यहाँ पे लगता नहीं है कि कुछ फॉर्मल चल रहा है, समथिंग वेरी कनेक्टिंग। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। थैंक यू सो मच दीपक। ओके, सो दीपक, व्हाट हैज हैपेंड, गानों से ना कई बार मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लोज होते हैं लाइफ के, तो मुझे बहुत पावर मिलती है गानों से, एक डायरेक्शन मिलता है। सो डज इट हैपन विथ यू आल्सो और इज इट जस्ट हैपनिंग विथ मी? मतलब मुझे बहुत क्लैरिटी मिल जाती है गानों से। या ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। ये बहुत खूब बात है। ये हमें बहुत लोगों को ये शायद पता नहीं है। जो गाना है, जो म्यूजिक है, म्यूजिक इज एक्चुअली हीलिंग। इसके अंदर वो शक्ति है, अच्छे अच्छे बीमारी को बहुत हद तक सुकून मिलता है, आराम मिलता है। अगर पर्सनली मेरी अपनी बात करूं तो इस सफ़र में, 48 साल के सफ़र में मुझे मुझे बहुत कुछ लो देखने का मौका मिला। बिजनेस में बहुत डाउन मुझे देखने का मौका मिला। एंड कुछ ऐसा जहन में आया था, अगर मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, शाम का वक्त है जहां मेरे को लगा सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे वो कर लेना चाहिए जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया है। पर मुझे ना गाने ने बचा लिया, मेरे संगीत ने मुझे बचा लिया। एवरी टाइम आई थिंक ऑफ दैट, मैं बहुत मुश्किल से वहां से अपने आप को डाइवर्ट करके मैं अपने टेरेस में जाता हूँ, एक छोटा सा रूम बना, वहां पे मैं गुनगुनाता हूँ। जैसे 4-5 गाने गाता हूँ, आई एम फुल ऑफ विथ एनर्जी, फुल ऑफ विथ मोटिवेटिंग फैक्टर्स मेरे अंदर आ जाता है। और वहां पे मेरे को इनकरेज मिलती है कि नहीं दीपक, गलत हो जाएगा, नहीं, तुझे बहुत कुछ करना है, तेरे को बहुत कुछ लाइफ में अभी जीना है, कुछ करना है, बहुत सारे लोग तेरी वेट कर रहे हैं, आपकी वेट कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में मेरे को बार बार गाने ने, मेरे म्यूजिक मुझे निकाला है। क्योंकि बहुत सारी और भी बातें हैं, मैं शायद इस प्लेटफॉर्म में इस बार शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा, बहुत कुछ है बोलने के लिए दिल में। कुछ इतना ही समझे कि बस मैं आज अगर हूँ यहाँ पे बैठा हूँ, बहुत बड़ा सहारा है ये मेरे म्यूजिक का है। मुझे आज से करीब करीब 29 साल पहले, 29 ईयर्स पहले प्रिसाइसली, एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि मैं एथलीट हूँ और मैंने नेशनल रिप्रेजेंट किया ओपन नेशनल एथलेटिक्स में। और आज मेरे पास उस टाइम की गोल्ड मेडल 1991 में मेरे को गोल्ड मेडल मिला था 4x100 मीटर रिले रेस में, और विथ न्यू मीट रिकॉर्ड। सो उस दौरान, उसके बाद ही इमीडिएट मुझे कुछ इंजरी हुआ, बैक पेन, लोअर बैक में इंजरी हुआ। और उस दिन से लेके आज तक मैं दोबारा कभी दौड़ नहीं पाया उस हिसाब से जैसे दौड़ना चाहिए था, बिकॉज आई वाज ए स्प्रिंटर। सो मुझे नहीं मालूम कैसे चोट लगी मुझे, बट इतना मुझे मालूम है आज मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बहुत बड़ा झटका लगा मुझे लाइफ में, बिकॉज ऑफ मैं वाज वेरी प्रॉमिसिंग एथलीट एट दैट टाइम। पर गानों ने मुझे बहुत सहारा दिया। अगर मैं गाना नहीं गा रहा होता तो मैं शायद दुनिया में शायद नहीं होता, शायद, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है। सो यस, इट इज अ हीलिंग, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। Your story is really overwhelming and but I'm so happy that हमारे पास गाने हैं, बहुत बड़ा सहारा है जिसके सारे हम हमेशा आगे बढ़ जाते हैं और उबर जाते हैं कितने भी बड़े दुख से। सो दीपक, थोड़ा सा मैं एक वो चाहूंगी, योर वाइफ, यू नो, दिस इज अ वेरी ह्यूमरस इंसिडेंट व्हिच आई वुड लाइक टू कोट विद योर परमिशन। आपकी एक बार एक टॉक चल रही थी वेरांडा में एंड योर वाइफ, डॉक्टर मधुमिता उनका नाम है शायद, राइट? सो शी स्नीक्ड इनटू इट और उसके बाद शाम को आपने बोला थैंक गॉड नाउ, अब उसको पता चल गया कि अच्छी संगत है। वो क्या इंसिडेंट था? ये बड़ा अच्छा वाक्य है। तो ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा था और जैसे कि घर घर में होता है, जब काम करने की बारी तो मैं सारा काम ऐसे मैं निपटा देता हूँ। और मेरा ये मानना है, टू बी ऑनेस्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, मैं ये समझता हूँ जो घर में जो भी मैं काम करता हूँ घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आई कैन गिव ए ओपन चैलेंज टू ऑल दी जेंटलमैन इन दिस वर्ल्ड। जो मैं हेल्प करता हूँ वो शायद कोई नहीं करता होगा, बट ऑन टॉप ऑफ इट मुझे बड़ा मजा आता है जब सुनने को मिलता है आगे से, तुम करते क्या हो, तुम कुछ नहीं करते हो घर में। सो आई टेक इट एज ना हाफ हाउस वाइफ, टू बी ऑनेस्ट। बट यस, बड़ा अच्छा था। तो इन बिटवीन क्या होता है, जब मैं प्रोग्राम में होता हूँ म्यूजिक वरांदा के साथ, तो शी इज नॉट फीलिंग वेरी वेरी कंफर्टेबल, वेरी गुड, बिकॉज व्हेन शी कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस शी वांट्स टू हैव सम टाइम विथ मी, चाय कॉफी वगैरह जो भी है ना। सो मैं उस टाइम में थोड़ा सा बिजी रहता हूँ वरांदा के साथ, तो कई बार मुंह बना लेती है। तो सो एक बार की बात है, क्या हुआ कि ऐसा शाम का प्रोग्राम था, 5:30 बजे का कोई टॉक शो था, तो मुझे साथ में बुलाया गया था सुनने के लिए।
तो फिर मैंने वाइफ को बोला ऐसे ऐसे मेरा टॉक शो चल रहा है मेरे प्लेटफॉर्म में, तो थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। तो उनको लगा कि यार ये चक्कर क्या है, हमेशा ये बिजी रहते हैं, वरांदा 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 वरांदा, पागल हो गया, पता नहीं कौन लोग हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सो लेट मी फाइंड आउट। तो स्पाइंग करती है सेल्फ, और जो है क्या बोलते हैं, उनके पास ऑलरेडी लॉगिन और पासवर्ड मैंने पहले दिया हुआ था कि कभी भी मन करे आप वरांदा में आ सकते हो। तो शी नेवर फेल्ट लाइक कभी आऊं। तो उस दिन शाम को क्या हुआ, अपने ऑफिस से ही लॉगिन किया। जब लॉगिन किया मेरे को एकदम से दिख गया कि डॉक्टर मधुमिता हैज लॉग्ड इन। तो मैंने फिर स्काइप से मैसेज किया कि प्लीज यू नो ओपन योर वीडियो, बट शी वाज मे बी बिजी और समथिंग। तो उन्होंने वीडियो नहीं ऑन किया। पर जब उन्होंने प्रोग्राम को देखा, देखा कि अच्छे अच्छे महान हस्तियों के साथ टॉक शो हो रही है, उन दिन मेरे ख्याल से दो डॉक्टर्स आए थे और वो भी डॉक्टर है। तो उन्होंने उस बात को कनेक्ट किया कि अगर ऐसी बड़ी बड़ी महान हस्तियां इस प्लेटफॉर्म आ रही हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये दर्शाता कि मेरे हस्बैंड सही जगह पे है और सही लोगों के साथ है। तो तब से लेके आज तक मेरे को जहां तक लगता है उसने कभी मुझे टोका नहीं है। बट यस, शी इज लुकिंग फॉर मोर टाइम फ्रॉम मी। बट एट द मोमेंट मैं दे भी रहा हूँ, पर एट द सेम टाइम आई एम सेल्फ डिटरमिन्ड कि मुझे कुछ करना है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए। सो आई हैव टू डू इट। सो थैंक यू सो मच। That's so wonderful. So a song from you, Deepak. अच्छा सा कोई गाना सुना दीजिए। और बहुत सारी फरमाइशें आ रही है फेसबुक पे, तो आप थोड़ा कोशिश उसके लिए करूंगा टाइम बिकॉज आई निकालिएगा। एम लिमिटेड विद माय ट्रैक्स, ठीक है ना। हाँ, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उन sure. फरमाइश को पूरा कर We सकूं। should always try. थैंक यू सो फरमाइश मच। पूरी करने का। जरूर जरूर। सो एक गाना मेरे जहन में आ रहा है, बहुत अच्छा गाना है, फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से, अ, फूलों का तारों का सबका कहना है। और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी फैमिली को। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 साल और 13 साल की, और मेरी वाइफ को, सबको, मेरी पूरी फैमिली को ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहूँगा विद परमिशन। जस्ट अ फ्यू मोर सेकंड्स। या फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। हे जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद
मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, हे, हो, Thank you so much. दीपक, बहुत बहुत सुंदर गाना, बहुत ही सुंदर गाना और मन को छू गया गाना। और my brother is also in the chat room, so I'm sure वो भी यही बोल रहा होगा मेरे लिए शायद। Hope so. So moving ahead, दीपक, मैं चाहती हूँ कि कोई गाना आप डेडिकेट करें आपके जो इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं और बाकी सब लोग हैं FB पे जो आपको देख रहे हैं। Some nice number if you can dedicate to them with a message. जरूर जरूर। So thank you very much once again, Music Veranda, Anila ji, and to all my friends, my working friends, working partners in my office. I work for a British company named Citrus Holidays. We sell holiday packages throughout the world, out of UK market, out of Scottish market, out of Canadian market, and also out of US market. So they've been supporting me a lot. बहुत encourage करते हैं जहाँ तक मेरी म्यूजिक की बात है। जब जब मैं उनको गाना भेजता हूँ मुझे बहुत encouragement मिलती है कि दीपक और सुनाओ और कुछ बढ़िया गा के भेजो ग्रुप में। So मुझे बहुत encouragement मिलती है और मैं उनको एक गाना डेडिकेट करना चाहूँगा। बहुत मस्ती वाला गाना है वो। So मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, और ये गाना है फ्रॉम द मूवी कटी पतंग, राजेश खन्ना, एंड sung by किशोर कुमार, one and only versatile genius. So just a few seconds, please. ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अनजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, पर महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने
हमें दो यार, हम ना करेंगे प्यार। वाह Thank you दीपक, so much. Thank you. कैन आई टेल यू समथिंग? Please. आप ये गाना इतना एंजॉय कर रहे थे, यू आर लुकिंग सो चार्मिंग, पीछे पर्दा हिल रहा था और बहुत ही आप यू आर लुकिंग लाइक अ हीरो, यू नो, एंड यू आर, Thank you यू for the आर compliment. I look एक्चुअली। like Devanand. मुझे बहुत लोगों ने बोला भाई देवानंद कहाँ है, कई बार मेरे को ये बोला गया है because I you know my side face looks like आवाज देवानंद. दीपक थोड़ा हाँ जोर आवाज से। आ रही है, आवाज आ रही है. अब ठीक है, हाँ हाँ। मैंने कहा बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आपका देवानंद के जो शक्ल से काफी रिजेम्बलेंस करते हैं, आई साइड फेस बहुत ज्यादा, हंसी भी आई और यस, फेस जो एक्सप्रेशंस है जो कटिंग है, बट एनीवे मैं उनके इतना बराबर भी नहीं हूँ. ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट. नहीं आज आपको बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं, अच्छा. सो बी प्रिपेयर्ड, ओके। थैंक यू सो मच. ओके, सो दीपक आज बहुत सुंदर दिन है, आज गुरु पूर्णिमा है, और इट इज मतलब बहुत एक ये डिवाइन डे है कि आज टॉक आपका आज के दिन है। So what is Music Veranda to you? What is Guru to you? Can you just elaborate on this? जरूर. फर्स्ट ऑफ ऑल Can I just interrupt? Yeah. और अभी आपने फॉर्मल ट्रेनिंग भी स्टार्ट करी है गाने की जयेश गुरु जी के साथ, तो would you like to dedicate a song also for him? Yes, go ahead. जरूर जरूर. थैंक यू सो मच. सबसे पहले गुरु जी को सादर प्रणाम. कोई भूल चूक हो रही हो गई हो या होने वाली हो तो मुझे प्लीज माफ कर देना, क्योंकि जैसे आपको ऑलरेडी मालूम है और मैंने कई बार आपको बोला भी है, मेरी आज से पहले कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है, कहीं से मैंने कुछ सीखा नहीं है. जो भी सीख रहा हूँ आपके हाथों से सीख रहा हूँ. आप जैसे जैसे निर्देश मेरे को आदेश कर रहे हैं, और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाए म्यूजिक वरांदा के कारण. अगर म्यूजिक वरांदा मेरे जिंदगी में नहीं आता तो मैं आपसे मिलता नहीं हूँ, मिल नहीं पाता. दूसरी बात क्या है, जो सबसे खास बात है मैंने देखा है, हमारे वरांदा के जो म्यूजिक टीचर मिस्टर जयेश चंद्र मिश्रा जी, सबसे खास बात जो मुझे लगा, जो मेरे दिल को छू गया और जो मैं चाह रहा था जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मुझे मिले, वो मिल चुके हैं. ही इज वेरी वेरी सिंपल. द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन इज इज सिंप्लिसिटी, एंड आई हैव गॉट नो डाउट अबाउट इट. एंड आई बिलीव वरांदा के जितने भी सदस्य हैं उनको ये भली भांति ज्ञात है कि ऐसे इंसान मिलना नामुमकिन है. और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इनका साथ मिला, इनसे सीखने का मौका मिला. आज मैं सिर्फ और सिर्फ पहली पायदान में चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे सरगम की बोल सिखाए जाते हैं. और सरगम का जो पहला स्वर है वो है सा. और ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, अभी तक मेरे को सा बोलना नहीं आया है. और गुरुजी कहते हैं जिस दिन आप सा बोल लोगे जैसे बोलना चाहिए संगीत के हिसाब से, उस दिन आप कुछ कमाल कर जाओगे. तो सा के बाद 7 स्वर और लगते हैं. तो सा करते करते मुझे करीब करीब मेरे ख्याल से 22 दिन हो चुके हैं. गुरुजी ने बोला था 7 दिन में सा, 7 दिन में नेक्स्ट जो स्वर है सा रे गामा पा. तो 7 दिन करेंगे. 49 डेज बाद आपको हम बताएंगे आप गाना गाने लायक है या नहीं है. पर आज 22वां दिन है और मुझे अभी तक सा नहीं बोलना आया. गुरुजी कहते नहीं, आपको मैं ऐसे नहीं थ्रू करूंगा नेक्स्ट लेटर पे जब तक आप सा पूरा नहीं कर पाएंगे. तो मैंने कहा गुरुजी मैं पूरी तरह समर्पित हूँ, जैसे जैसे आप बोलेंगे. जब तक आपके हिसाब से सा नहीं बोल पाऊंगा तब तक मैं आगे बढ़ने का कोशिश नहीं करूंगा. तो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी में बिल्कुल निस्वार्थ सिखाते हैं. और लगभग सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1-2 बजे तक जब भी मैं चाहूँ मैं फोन करता हूँ, वो हमेशा मेरे फोन उठाते हैं. ये वरांदा के लिए एक है ना, क्या बोलते हैं, डायमंड. और डायमंड से भी बढ़कर प्लाटिनम है. और मैं हम लोग बहुत आभारी है गुरुजी हमारे साथ आप है. और बहुत उम्मीद करते हैं वरांदा के सभी परिवार के सभी लोग कि हमें आप बहुत आगे तक लेके जाएंगे. और जिंदगी में गुरु को होना बहुत जरूरी है. और मैं ये भी समझता हूँ जिंदगी में एक अच्छा फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त और एक गुरु को होना बहुत आवश्यक है. गुरु हमेशा मार्गदर्शक बनते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं. और दोस्त वो होता है जो सुख दुख में हमारा साथ होता है और कुछ भी हम उससे शेयर कर सकते हैं. और कहते हैं जिसके पास एक अच्छा दोस्त है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता है, दिल की सारी बात उससे शेयर कर सकता है. और लकीली जो है मेरे पास बहुत अच्छा गुरु आज के डेट में मिल गया है थ्रू म्यूजिक वरांदा. और मेरे सबसे अच्छा दोस्त जो है वो मेरी वाइफ है. थैंक यू सो मच अनिला जी. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन.
so beautifully. And आप बोल रहे हैं वेरांडा मिला. I think what seeks you is seeking you. So ये सब वेरांडा को आप मिले, आप वेरांडा को मिले. I think it's all interrelated. So let's all be happy about it. You know, that's the whole thing. हमारा कंसर्न ये है कि दुनिया में जितने भी परेशानी चल रही है, पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है, whatever you name it, right? Music is one power that can heal almost every disease, provided if you believe on this. ये मेरा मानना है. और मैं जीता जागता उदाहरण हूँ इस चीज का कि मुझे बहुत अच्छा हीलिंग मिलती है. आज हमारी फील्ड की अगर हम बात करें, टूरिज्म इंडस्ट्री में बिल्कुल खत्म हो चुका है और कहते हैं कि अगले 2 साल तक कोई उम्मीद नहीं है कि टूरिज्म उस लेवल पे दोबारा पहुंचेगा, एट पार में पहुंचेगा. तो ये 2 साल का जो सर्वाइवल है, बैक ऑफ माइंड में इतना बड़ा स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को मैं समझता हूँ म्यूजिक वरांडा ने, म्यूजिक ने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया है. सो थैंक यू म्यूजिक वरांडा, थैंक यू अनिला जी, थैंक यू एवर सो मच. And some song that you would like to dedicate to Jayesh Guruji. जरूर. सो गुरुजी के लिए मैं खास एक गाना निकाला है. गुरुजी ने बोला हाँ दीपक ये गाना जरूर आपने गाना है और खासकर मेरे लिए गाना है. सो गुरुजी आपके लिए डेडिकेटेड है. कुछ भूल चूक हो तो प्लीज माफ कर देना, बिकॉज मुझे कुछ नहीं आता गाने के बारे में, मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ. सो थैंक यू सो मच. गिव मी अ फ्यू सेकंड्स प्लीज. ये जो गाना है बहुत ही खूबसूरत है और जो मूवी है Can't hear you, Deepak. कटी पतंग. So here आपकी आवाज नहीं आ रही दीपक. अभी आवाज आ जाएगी. थैंक यू सो मच. Hi friends, good morning. This is Deepak Day again from Music Randa. You are watching Kishore Kumar's exclusive songs on my hands. So like and share it on my YouTube channel. Thank you so much. Have a good day. चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए. चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए. मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए. हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए. ये मस्ती के नजारे हैं तो वैसे में संभलना कैसा, मेरी कसम तू लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे. मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए. हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए. Wow, that's wonderful tribute, wonderful tribute. और इतना सुंदर गाना और हुडलिंग भी आपने बहुत. That's wonderful. Thank you so much. So Deepak, I would like Jayesh ji to say a few words to you. आशीर्वाद दें अपना. जयेश सर आप हैं? जी जी जी. प्रणाम गुरु जी. प्रणाम प्रणाम. सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में दीपक जी को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद, शुभकामना. और जब भी जितने भी म्यूजिक वरांडा के शिष्य हैं मेरे, सभी को आशीर्वाद. और मैं बहुत म्यूजिक वरांडा प्लेटफॉर्म बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा शिष्य मिला है. मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि दीपक जी बहुत जल्दी मेरा नाम रोशन करेंगे. और मैं इनके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दिया है और ये मेरे पास आए भी थे. हमने कहीं इसके पार्ट्स मैंने बताया गायकी में, गायकी कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, देखिए गाने में छोटी छोटी चीज़ें कैसे लेके आना है उसमें. तो मुझे उम्मीद है दीपक जी से, और वो दिन दूर नहीं है. दीपक जी गा रहे हैं अभी और मेरे पास है जरूर कि नई गायकी के साथ नया शुरुआत करेंगे ये. और मुझे लग रहा है कि आप अभी दीपक जी क्या अभी जो आपने मेरे लिए डेडिकेट किया वो गाना बहुत ही अच्छा गाया आपने, सबसे पहली बात. दूसरी बात, जो अभी आप तक आपने गाया है वो तो आपने गाया है. अब जो आप गाने वाले हैं
वो कमाल का होगा। जो कि और आपने कहा कि मेरा इतना एज हो गया है, तो मैं कहता हूँ म्यूजिक ब्रेंडा प्लेटफॉर्म पे उम्र कोई मायने नहीं रखता है। जहां से आप रियाज शुरू किए उसी दिन से गाना शुरू हो जाता है, इसलिए उम्र कोई मायने नहीं रखता। रियाज करने से, मैंने आपको पहले भी मैंने पहले भी कहा है ये बात, जो रियाज करेगा वही चमकेगा। तो रियाज करने से, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। देखिए, कोई एक दिन रियाज करके हो जाता है, कोई 1 महीना रियाज करके होगा। तो रियाज करना है, आगे बढ़ते रहना है। और आज मैं बता रहा हूँ, किशोर जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपका गाना ऐसा आने आएगा कि हमेशा लोगों को महसूस होगा कि किशोर कुमार आज भी हैं। ठीक है, और आपका जो है अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं आपका गाना भी लॉन्च करूंगा, और आप बहुत अच्छा गाएंगे। आपसे मेरा बहुत उम्मीद है, बहुत एक्सपेक्टेशन आपसे। अब मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे शिष्य मुझे मिला है। तो मैं कहूँगा कि आप रियाज करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और म्यूजिक ब्रेंडा के प्लेटफॉर्म पे नाम रोशन करते रहिए। म्यूजिक ब्रेंडा का नाम रोशन कीजिए आप लोग, और यहाँ से सभी शिष्य यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और बहुत, और अनिला रामपुरिया जी का इतना बड़ा सहयोग है, और इतना बड़ा हम लोग फाउंडर्स हैं, ये करके आप इतना साथ दे रहे हैं हम लोगों को। शायद हालांकि हम लोग भी बहुत कुछ कर जाएंगे इस पे। और ये म्यूजिक ब्रेंडा यदि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे जाएगा, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है, भविष्य यहाँ से दिखाई दे रहा है म्यूजिक ब्रेंडा का। और इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है, काम करना है, हम सभी सदस्य को काम करना है, सभी को मिल के काम करना है, नए नए टैलेंट्स को लेके आना है। ठीक है, जहाँ छुपे हुए कलाकार है उसको निकाल के लेके आना है, और अच्छे प्लेटफॉर्म लेके दुनिया में घर घर में ये म्यूजिक ब्रेंडा का चर्चा होना चाहिए कि हम लोग अच्छे लेवल पे काम करेंगे, जैसे दीपक जी आज कर रहे हैं। ठीक है, आज पता लग रहा है दीपक जी कैसा गाना गा रहे हैं। आज म्यूजिक ब्रेंडा प्लेटफॉर्म में है, तभी तो आज पता चल रहा है, नहीं तो आज कहाँ पता चलता है। तो आपके माध्यम से बहुत मैसेज जा रहे हैं, और बहुत जल्दी दीपक जी मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप रियाज करते रहें, तो मैं कहीं ना कहीं आप जरूर दिखेंगे। आप इसी के साथ मेरा बहुत बहुत शुभकामना और मेरा आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुजी। दीपक मैं जी, उम्मीद करूँ आपकी उम्मीद वेरी पूरी वेरी करूंगा। फॉर्चुनेट, आपको इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिली गुरु पूर्णिमा के दिन। तो ये बहुत बड़ा, बहुत सुंदर संजोग है। तो दीपक, संदीप मोंटू जी का आज बर्थडे है, तो वी आर विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आई होप ही इज वॉचिंग अस लाइव। मोंटू जी, आप दुनिया के जिस कोने में भी हो, आप शायद हमको सुन सकते हैं। ठीक है, तो दीपक एक सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं, स्पेशली फॉर मोंटू संदीप पाटनी फॉर हिज बर्थडे। यस दीपक। Thank you so much. First of all, a very happy birthday once again, belated to Montu ji. बहुत चहेते हैं हमारे वरांदा के, a very good singer as well. So एक छोटा सा पेशकश मेरी तरफ से आपके बर्थडे पे. So just a few seconds. La 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 la। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले।
चार पल है, आगे है क्या किसने जाना, जीना जिसे आता न हो इनमें ही मौज मना दे। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। वाओ, थैंक यू। तो वंडरफुल, ये गाना ही इतना सुंदर है, आप सोच सकते हैं कि मैं कितना खो गई थी इस गाने में। ये मेरा फेवरेट गाना है वैसे भी, आई लव दिस सॉन्ग। ओके, सो गौरव जैन, आर यू देयर? No, I'm not there. Not there, okay. You have to be there always. That's very important. Okay, so Gaurav Jain. All right. So first of all, a very happy Purnima, Guru Purnima ji to everyone, especially to Guru Jayesh sir. And दीपक दा के बारे में मैं क्या बोलूं, मेरे को हम लोग ने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था म्यूजिक वरांडा, हमने एक बहुत एक कैजुअल रूप में शुरू किया था, जिसमें हम लोगों के कुछ खास दोस्त एकदम से आते थे, सब लोग गाने गाते थे, कुछ हम लोग रिक्वेस्ट करते थे, और ये बहुत प्यारा गाना हम सब लोगों ने, मतलब जो ये पूरा प्रोग्राम है म्यूजिक वरांडा का, हम लोग ने फिर शुरुआत करी कि चलो हम लोगों का टॉक सेशन रखते हैं कि भाई उनकी क्या म्यूजिक जर्नी है, क्योंकि हर किसी के अंदर एक रॉक स्टार छिपा होता है, एक पूरी जर्नी होती है जिसमें एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। और दीपक जी से मेरी कई बार फोन पे बात होती है हमेशा, लेकिन बात अधूरी रहती है, कभी भी बात ना कंप्लीट नहीं हो पाई। पहले मैं जानता हूँ कभी दीपक जी क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, फिर वो पूछते हैं कि गौरव जी आप क्या क्या करते हो, तो ये सिलसिला ना हमेशा चलता रहता है। मैंने कहा कि यार जितना मैं जानना चाहता हूँ, जितना जानता हूँ यार क्या क्या करते हैं, ये क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या करने वाले हैं। और मुझे वो पल याद आते हैं स्टार्टिंग में जब हम लोग म्यूजिक वरांडा शुरू किया था, 3-4 महीने हो गए, कि जब भी मतलब द हैट्स ऑफ टू हिज डेडिकेशन, कि जब ये गाने आते थे, मतलब 9 से 10, 9:30 से 10:30, 10 से 11, हम जो भी टाइम में करते थे, जब ये किचन में भी कुछ खाना वगैरह बना रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, उस टाइम भी इंतजार करते थे कि भाई मेरा नंबर आने वाला है, आई हैव टू बी रेडी। प्लस अगर मेरा नंबर आ चुका है उसके बाद में भी द डेडिकेशन इज सो मच कि ये सारा प्रोग्राम देखते थे कि यार अच्छा और कौन गा रहा है और कैसे कैसे गा रहा है, सभी को कॉम्प्लीमेंट्स देते थे, सभी के बारे में एक खास बात नोट करते थे। ही इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, और सभी बहुत केयरिंग है ये, कि जैसे हम लोगों को कुछ चीजें दिक्कतें होती हैं या सजेशंस होती है, ही ऑलवेज पार्टिसिपेट। सो हेड्स ऑफ हिज डेडिकेशन। कई बार होता है कि ऑफिशियल में थोड़ा बिजी है, कोई कॉल आ गई है ऑफिस से या घर में कोई चीज है, तो ऑलवेज इनका मैसेज आता है कि गौरव जी आज मैं नहीं आ पाऊंगा या थोड़ा लेट आऊंगा। सो वी आर रियली ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि मन्ना दे के परिवार से हमारे हमारा जो ये म्यूजिक वरांडा का परिवार है, दीपक दा, मतलब मन्ना दे के बारे में मैं क्या बोलूं, इतने बेहतरीन गाने उन्होंने हमारी पूरी दुनिया को, बॉलीवुड इंडस्ट्री को, पूरे इस जगत को दिए हैं। और उसका ये जो अंश है दीपक दा, वाओ, आई एम गेटिंग गूज बम्स के हमें बहुत सौभाग्य मिला है कि इनके द्वारा हम इस म्यूजिक वरांडा को कितनी ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, और इनके अंदर के जो कलाकार है वो निकल के सामने आ रहा है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो हम लोग आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन जो आपकी जर्नी है वो आपको ही पूरी करनी है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जैसे ही हम कुछ बोलते हैं कि अरे यार ये वाला गाना बहुत टाइम हो गया सुने हुए, हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी की कोई रिक्वेस्ट हो, एकदम से दीपक तक अरे ये गाना मैं ट्राई करूंगा। एंड अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, डेली सुबह की जो शुरुआत होती है हमारे म्यूजिक वरांडा का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, he is never failed to share the song. Hats off, thank you so much, because देखो intention matters a lot दादा, और आपकी ये जो छोटी छोटी सी कोशिशें हैं, इट मीन्स अ लॉट, ट्रस्ट मी। हो सकता है कि हम लोग हमेशा उस पर रिप्लाई नहीं कर पाते, कमेंट नहीं कर पाते, बट you are being really loved and praised by each and everyone, कि कोई भी कहते हैं कि यार ये गाना सुनना है, एकदम से कहते हैं कि अच्छा ये गाना मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजूंगा। और किशोर कुमार तो एक अपने आप में इतने बढ़िया कलाकार हैं, नाम से ही स्माइल आती है। तो जब भी वो गाना गाते हैं किशोर कुमार का, स्पेशली जो डुडली करते हैं लास्ट में, ओ माय गॉड, दे आर लाइक वाओ। सो दीपक दा, यू रियली रॉक।
और मेरी एक गुजारिश है, अगर आप वो गाना गा दें, एक लड़की भीगी भागी सी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, चाहे बेशक बिना म्यूजिक के ही सही, 2-3 लाइनें गुनगुना देंगे, और स्पेशली एंड वो डूडली से करना है, जो मुझे आपके जबान से बहुत अच्छी लगती है। एंड माई सो मेनी गुड विशेस टू यू, क्योंकि आपने ही जो है म्यूजिक वरांडा की शान को बढ़ाई है, और गुरुजी का आशीर्वाद है, हम सबकी गुड विशेस ऑलवेज आपके साथ में है, कि हमेशा आप हंसते रहे, गाते रहे, और हम सभी का मनोरंजन करते रहे। एंड बहुत जल्दी हम आपको बहुत बड़े बड़े स्टेज पे देखने वाले हैं, और जब आप अपनी एल्बम लॉन्च करोगे, कुछ भी करोगे, तो हमारे ऑटोग्राफ जरूर दे देना हमें। सो ओवर टू यू दीपक दा। मैं हमेशा आभारी रहूंगा सभी लोगों का, स्पेशली म्यूजिक वरांडा का, अनिला जी का। और कहते हैं इंसान जितना मर्जी आगे क्यों ना निकल जाए, जितना मर्जी कामयाबी क्यों ना हो जाए, उसको ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, और मेरा ये फिलोसफी भी है। और मैं सबसे मैं सलाह भी दूंगा, सजेस्ट भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमेशा ज़मीन से जुड़े रहिए। जितना आगे बढ़ेंगे, शिखर पे पहुंचना बहुत आसान है, और कई लोग पहुंच भी चुके हैं। शिखर पे बने रहना बहुत मुश्किल है। तो कुछ ऐसा करिए, शिखर पे बने रहिए, और हमेशा आपका जो 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 स्वभाव है वो झुका हुआ होना चाहिए ना धरती की तरफ। कहते हैं ना, पके हुए फल जो होते हैं ना डाली में, वो टहनी में ऐसा हो झुक जाता है, कभी ऐसा नहीं रहता है। अगर ऐसा रहता है, इसका मतलब अकड़ के रह रहा है, और अकड़ जो है मुर्दे की निशानी है। अगर आपने ईसीजी देखा होगा, ईसीजी में ऐसा ऐसा करता है, जिगजैग करता रहता है, इस मतलब दैट पर्सन इज स्टिल हैविंग लाइफ। जब इसीलिए डेड हो जाता है, सिंगल लाइन, दैट मींस इज डेड। सो अकड़ मुर्दे की पहचान है। सो हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए, हमेशा, है ना, डाउन टू अर्थ रहिए, बहुत जरूरी है, मेरा ये मानना है। थैंक यू सो मच गौरव जी। मैं कोशिश करूंगा। एक लड़की भीगी भागी सी है। सो लेट मी सी इफ आई गॉट द ट्रैक। वन मोमेंट प्लीज। Here I go. एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। ढूंढलाती हुई, बन खाती हुई, सावन की सुनी रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। CJ, थैंक यू सो मच दरा, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। आपकी स्माइल बताते हैं आप बहुत खुश हो गाना सुन के। यू लाइक दिस सॉन्ग वेरी मच। Okay, so yes, so our dear friend Gaurav Bhardwaj is here. Gaurav and Deepak are great friends. Gaurav, I'm sure you'd like to say something about Deepak ji. श्योर। दीपक जी के बारे में ना बड़ा सिंपल है कि समय का प्रयोग कैसे किया जाए, समय को कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो जैसे मैं जानता हूँ, जैसे जीजे ने अभी बताया कि एग्जैक्टली 7 बजे या सुबह उससे पहले भी जीजे के मैसेज आ जाते हैं, म्यूजिक वरांडा जीजे कह रहा हूँ, दीपक दा के हमारे मैसेज आ जाते हैं
और इससे पता लगता है कितने पंक्चुअल, कितने डेस्परेट हैं सिंगिंग को लेके, म्यूजिक को लेके। और जो म्यूजिशियन होता है, जो म्यूजिक को लेके बहुत डेस्परेट होता है, उसका दिल भी बहुत अच्छा होता है। तो इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि इनका दिल कितना अच्छा है। नो डाउट। काइंडली पार्क द कार। कार कार पार्किंग से तो निकाली अभी जस्ट। तो वेल दीपक जा, आप बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही एकदम प्लान्ड लगते हो। मैं जो दिल से बोल रहा हूँ, जो मेरे को लगता है, आप बहुत ही प्लान्ड लगते हो। ऐसा नहीं लगता कि आप कोई चीज बना रहे हो। और आप सच में एक और बार दोहराना चाहूंगा, जो समय का कहते हैं ना उपयोग करना, वो कोई आपसे सीखे। आपने मुझे कई बार बताया कि गौरव टाइम, समय, वक्त, जो सच्चाई है एग्जैक्टली। और बाकी मैं आपका वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल याद है फैन भी हूँ। आपका? मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था, फ्लाइट का एग्जाम्पल दिया था समय को लेके, एक बार सुना दीजिए गौरव जी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आपको याद हो तो। ये एक अच्छा एक मोटिवेशन है ये, प्लीज अगर आप, प्लीज, याद है ना? कैसे 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 कैसे? वो जो आपका शो था ग्रीस में, एथेंस में, 20 लाख रुपए आपने लिए थे, 2 लाख रुपए एडवांस लिए थे, 18 हाँ लाख जो हाँ, है आपने बताया था, प्रोग्राम के बताया था, बाद मिलना था अगले दिन सुबह, और आप आलस कर बताया गए था। क्योंकि, है ना, वो आलस करके फ्लाइट नहीं लिया, तो 18 मुझे लाख भी याद है, गए जो मुझे मिलने याद है। वाले थे, 2 लाख जो लिए बैठे थे वो भी चले गए, वो भी गए, जिंदगी भर के लिए वो भी रिश्ता गए, खत्म हो और गया, गुडविल भी गुडविल भी खराब हुई, खराब हो गया। गुडविल भी हाँ थी, जी। वो भी खराब हुई एग्जैक्टली। मतलब ये है कि आपसे मतलब मेरे को लगता नहीं कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ। आपसे काफी चीजें सीखने को भी मिलेगी फॉर श्योर, मुझे ये लगता है। नहीं, ऐसा संगीत में कतई भी नहीं है। आप इतना अच्छा करते हो। नॉट मी, हर इंसान आपका फैन है। किशोर दा की आवाज तो देखो, अभी भी आपने गाया, किशोर दा का ही गाना गाया। तो मतलब आपके अंदर बहुत सारी, मेरे ख्याल से कहते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड एक्चुअल में आप हो। मल्टी टैलेंटेड अगर डेफिनेशन है, बोलने की जरूरत नहीं, मल्टी टैलेंटेड इक्वल टू दीपक डे, आई गेस सो। बहुत तो बड़ी ये आपकी उपलब्धि डेफिनेशन आपने उपाधि दे दी है, मैं बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। मैं कोशिश कर टू रहा हूँ बी कि वेरी कुछ तो हासिल करूँ जिंदगी में आप लोग के सहयोग से। नहीं थैंक यू नहीं सो मच दीपक, गौरव जी। बस यही है मेन आपका बड़प्पन, बस यही मुझे सीखना है फ्रॉम यू एग्जैक्टली। और कुछ लाइनें अगर गा सको मेरे लिए, मेरा बड़ा फेवरेट वो गाना है, आपको बताइए, कौन शायद सा? आपको, अब आपसे पूछूंगा, याद है? अब आपसे पूछूंगा मैं, याद है? मैं आपको एक बहुत अच्छा गाना डेडिकेट करता हूँ, चलो बहुत ठीक है, बढ़िया, ठीक है, और खासकर आप में बहुत डन फिट है। होता है, इसकी अच्छा, फीलिंग को आप समझना है। और ये बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना सर, अगर आपके पास एक सिक्का है और मेरे पास एक सिक्का है, कॉइन, हमने अगर एक्सचेंज कर लिया तो फिर से आपके पास एक और मेरे पास एक, नहीं, करेक्ट और अब करेक्ट। आपके पास एक ज्ञान है और मेरे पास एक ज्ञान है, अब करते एक्सचेंज, मजा आएगा। कितने हो गए आपके पास? 2 हो गए ना सीधे। अच्छा, फिर 2 आपने एक्सचेंज किया, मैंने 2 एक्सचेंज किया, कितने हो गए? 4। बस आप समझ जाओ आगे हिंदी में। सो थैंक यू सो मच गौरव जी फॉर गिविंग टाइम। अरे यू इट्स ड्राइविंग, बीइंग आई एम रियली प्लेजर। हैप्पी दैट आप आए, और एक बहुत अच्छा नहीं नहीं, गाना मैं मैं, अभी सॉरी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं अभी कुछ काम से आया था, मैं फेसबुक में लाइव था उस टाइम। ऐसा अच्छा मत अच्छा सोचो मैं अच्छा, ड्राइव कर थैंक यू रहा हूँ। सो मच, कोई थैंक यू अभी थैंक लॉन्ग ड्राइव सारी बंद है, सारी लॉन्ग ड्राइव बंद है। वो तो सामान वामान लाना यू। होता है, कभी भी पार्किंग से हटानी पड़ती गाड़ी। तो मैं पूरा सो देख रहा नाइस, था आपका शो। सो तो नाइस गौरव जी। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, आपको शायद मालूम नहीं है, मैंने बताया नहीं, और मुझे मालूम है मैं आपसे क्या क्या सीख चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं अरे बिना सीखे नहीं, मैं आपको छोड़ने वाला हूँ नहीं, अब ये ध्यान रखना। क्योंकि मेरे गुरु ने मैंने बोला है कि भैया अगर आपको कुछ जिंदगी में हासिल करना है ना, उन लोगों के संगत में आ जाओ जिनको कुछ कुछ आता है या बहुत कुछ आता है, अगर वो सिखाना नहीं चाहे तो उनके घर के सामने खटिया डाल दो, अरे वाह। छोड़ना नहीं। आप तो और अपने को ये मालूम है कि मैं एग्जैक्टली। खटिया डाल दूंगा, मैंने गुरुजी के घर में भी खटिया डाल दिया, उस दिन लेके गया था मैं अपने अरे साथ। आप खटिया डालने की जरूरत नहीं, आप मोस्ट वेलकम हो मेरे घर में, आराम से अपने मेरे घर के अंदर सोफे में बैठना, सो आराम से नाइस। चाय पियेंगे, खटिया की तो जरूरत ही नहीं है। और मेरी बड़ी मोस्ट गंदी वेलकम। आदत है, मैं रात को 2 बजे भी फोन कर देता हूँ अगर मुझे Yes, जरूरत I है ना। think 2 we're बजे running मेरा short फोन of 2 time. बजे और चलिए यारी गाना डेडिकेट करता हूँ, ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। short, ओके, सो श्योर फ्यू श्योर सेकंड्स, आप थैंक okay, यू, yeah, वन मोमेंट। sure. श्योर, ऑल द बेस्ट। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह
म्यूजिक वरांदा में तो नूर है लिटरली। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। Thank you दीपक so दा much. क्या Once बताना again, है, Gaurav सच ji, में thank you. बहुत आप खूब। आप म्यूजिक वरांदा में आए हो तो नूर आ गया सच में लिटरली। Thank you so ऐसे ही much. बनने Thank you. रहे आप और Thank you. आप हमेशा अपना बेस्ट देते रहे। थैंक यू, शुभकामनाएं आपको। Thank you, Gaurav. Thank you. Thank you, Thank you. Gaurav, so much. That was really nice of you. And two great rocking singers talking to each other. It's a very pleasing sight to see. So good luck. Okay, Deepak ji, Gaurav Arora ji ने एक message आपके लिए भेजा है. I'm happy to read that. I'm Please. stopping with my words by saying his story is an inspiration to all. He is simple, but a great human being, a husband, a citizen, and a great person. Best of luck for his musical journey. This is from Gaurav Arora ji from India Mentors. He is indeed a very humble person, and we are very fortunate to have him as part of Music Veranda. Thank you, Gaurav Arora ji. Thank you, Gaurav ji. So, Thank you for your good wishes. yeah. Okay, I'm receiving more messages, but before that, I would like Renu to say something about Deepak ji, क्योंकि आप वो हैं जो उनको ऐसे ऐसे गानों की फरमाइशें भेजती हैं कि दीपक परेशान हो जाते हैं वो गाने का ट्रैक ढूंढ ढूंढ के. Over to you, Renu. थैंक यू अनिला एंड थैंक यू म्यूजिक वेरांडा कि दीपक जी और इतने अच्छे अच्छे ग्रेट सिंगर हमको म्यूजिक वेरांडा से मिल रहे हैं. लकी टू हैव ऑल ऑफ यू. और थैंक यू अनिला क्रिएटिंग वंडरफुल शो ना, मेरी जर्नी मेरी कहानी, और आप दोनों की जर्नी और कहानी एंड वंडरफुल सॉन्ग सुनने में बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया. आप दोनों को बहुत बहुत बधाई. और दीपक जी तो जितना अच्छा वो गाते हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं, ये सभी बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो फील कर चुकी हूँ क्योंकि वो मोटिवेट भी बहुत करते हैं. और कोई भी म्यूजिक वरांडा में मिसिंग होता है, दीपक जी को जरूर नोटिस करते हैं कि वो क्यों नहीं आया, उनको कॉल करके पूछो या उनको कनेक्ट होना उनका हमेशा रहता है. सो वो बहुत कंसर्न है सबके लिए और म्यूजिक के लिए जो मोटिवेशन है उनका. सच में मैं सुबह उनको कोई भी गाना भेजती हूँ, टफ से टफ कोशिश करती हूँ कि आज कुछ नया भेजती हूँ, शायद दीपक दा नहीं गा पाए, लेकिन दीपक जी का रोज 10 मिनट में रिकॉर्डेड सॉन्ग आ जाता है. सो मतलब वंडरफुल. और हम तो बोलते हैं किशोर कुमार है वो हमारे वेरांडा के, और बहुत हम लकी हैं आपको हमारे बीच पाकर. थैंक्स अ लॉट. बहुत शब्द कम पड़ रहे हैं आपके लिए, लेकिन बहुत मजा आया. आप दोनों ने बहुत अच्छा शो दिया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच दीपक जी. और Thank you, गुरु Renu ji. पूर्णिमा की आप सबको बधाई. और गुरु जी हमारे बीच हैं, सबसे बड़ी बात यह है. और दीपक जी आप तो ब्लेस्ड हैं, गुरु जी के आपको आशीर्वाद मिल गए. और फिर इंडिया मेंटोर से आपको अभी अभी मैसेज मिला, तो उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी. पंछी जी हमेशा आपको तारीफ करते हैं, उनकी तरफ से भी स्पेशल आपको कमेंट्स आए हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं. सो वंडरफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू रेनू जी फॉर योर काइंड वर्ड्स. थैंक यू. मैं बहुत आभारी हूँ आपका. आपने सुबह से जो पुश करते हैं ना गाना भेज के, मुझे मोटिवेट करते, भाई दीपक अभी सोने का वक्त नहीं, उठ और कुछ गाना गा के दिखा. मुझे बड़ा अच्छा लगता है रेनू जी. यूं ही आप मेरे को पुश करते रहिए.
शायद हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं मोटिवेशन। ये अनिला से मिला है, आपसे मिला है, गौरव जैन जी वो बहुत मोटिवेट करते हैं। हम लोग कहीं भी गलती करते हैं कभी नहीं बोलते, वो बोलते बहुत अच्छा किया। ऐसे ही आप लोग सब इतने स्वीट हैं तो शायद हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। You're welcome. Yes, thank you, Renu. It was wonderful. Ma Shweta has sent a message, very inspiring journey, and I'll keep reading these messages. But I think we have another 7 to 8 minutes. तो हम चाहते हैं कि आप अपने best numbers सुनाएं, और because people are just enjoying your singing. थैंक यू सो मच। मुझे एक गाना अचानक मतलब माइंड में आ रहा है अभी। मुझे लगता है कि ये गाना मुझे सुनाना चाहिए। बहुत ही टची है, फ्रॉम द मूवी रॉकी। अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा है, इसमें एक गाना है, क्या यही प्यार है। और प्यार का जो परिभाषा है, जो प्यार जो शब्द है, और मेरे को लगता है हर इंसान को पता है और सबकी अपनी अपनी अहमियत है इस प्यार की परिभाषा का। सो मैं गाने के माध्यम से बताना चाहूँगा, ठीक है। सो गिव मी 2 seconds प्लीज। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। वो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है, हाँ हाँ क्या यही प्यार है। वो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है, बोलो ना। Yes, क्या यही प्यार है। हाँ, यही प्यार है। ठीक, गुड सॉन्ग। क्या यही प्यार है, हाँ हाँ यही प्यार है। वो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है, हाँ हाँ क्या यही प्यार है। वो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है, बोलो ना। हाँ यही प्यार है। पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद
जागता रहता हूँ मैं भी, चांद निकलता नहीं। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? बोलो ना, हाँ यही प्यार है। Thank you so much. Thank you for listening. Anila, unmute yourself. Anila. Still muted. Is it okay? Yeah. नीना FB लाइव पे देख रही थी, लेकिन वो लॉग इन करी है because she wants to say something about Deepak. नीना, over to you. Anila. Nina. Hello. Yes, Nina. Tell me. Can you hear me? Yes. Deepak ji, I can't tell you such beautiful numbers you have like this evening. हमने शो बहुत ही खूबसूरत गाना गाए, बहुत ही मजा आ रहा था. But I couldn't keep myself. I just wanted to come and personally congratulate you for this great Thank you for evening. coming, Naji. You are also one of the inspiration. Trust me. Amazing. No, it's beautiful. बहुत उन्हें क्या कहते हैं, गुरु के लिए भी बहुत ही दिल को छूने वाली बात आपने कही. और सीखना तो पूरा जिंदगी भर हम लोगों को है ही, हर एक किसी से अपन सीखते ही रहते. मैं आपसे भी बहुत सीख रही हूँ, अनिला से भी. We all are learning. So thank you so much. You're welcome, Naji. Thank you for coming. Wonderful, Nina. Thank you so much, Nina. Okay, Deepak, we are about to wrap up this session. कोई आपके अच्छे numbers रह गए हैं जो आपको सुनाने? फरमाइशें तो बहुत सारी हैं कि मैं शुरू करूंगी तो I don't know how it will go, you know. तो अब आप अपनी इच्छा का, क्योंकि जो भी आपको अच्छे लगते हैं numbers, 2-4 वो सुना दीजिए and we'll try to wrap up the. बहुत अच्छा गाना मैं सुनाता हूँ, Last Song of the Evening. मैं पूरा गाना सुनाऊंगा, ठीक है? बहुत अच्छी मूवी है, कभी कभी मूवी का नाम है, और काफी इंटरेस्टिंग नंबर है ये भी. प्यार कर लिया तो क्या, प्यार खता नहीं. So give me just few seconds. Hi friends, good morning. This is ओए प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं. प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं. तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं. प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं. तेरे होठ मेरे होठ छिल गए तो क्या हुआ. तेरे होठ मेरे होठ छिल गए तो क्या हुआ. दिल की तरह जिस्म भी मिल गए तो क्या हुआ. दिल की तरह जिस्म भी मिल गए तो क्या हुआ. इससे पहले क्या कोई ये सी
सितम हुआ नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। मैं भी होशमंद हूँ, तू भी होशमंद है, इस तरह जिएंगे हम जिस तरह पसंद है। हाँ, मैं भी होशमंद हूँ, तू भी होशमंद है, उस तरह जिएंगे हम जिस तरह पसंद है। उनकी बात क्यों सुने जिनसे वास्ता नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। रस्म क्या रिवाज क्या, धर्म क्या समाज क्या, दुश्मनों का खौफ क्यों, दोस्तों की लाज क्या। रस्म क्या रिवाज क्या, धर्म क्या समाज क्या, दुश्मनों का खौफ क्यों, दोस्तों की लाज क्या। ये वो शौक है कि जिससे कोई भी बचा नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और इट्स टाइम टू रैप अप। कोई आपका कोई पसंदीदा गाना या कुछ है, आप एक आध गा सकते हैं, बट I would just like to express my gratitude to few people. Jatin, our dear friend, who has actually helped us to create this show. So Jatin, it is unfortunate that he is not part of this program because uska kuch kaam aa gaya. He was supposed to host this show. So Jatin, aap nahi aaye, so I'm just doing your proxy, but we are missing you so much, Jatin. So a message from Jatin that he is very proud of being your friend, right? Thank you, Jatin. So, yes. So, any song that you would like to dedicate to Jatin and your other friends? एक गाना मुझे याद आ रहा है, अमर प्रेम का गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दीपक, एक चीज मुझे और ध्यान आई है, वो आप डेडिकेट तो करेंगे, और एक ये है कि व्हाट इज लाइफ टू यू, आप ये मेडले में ही बताइए, और छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइन गा के बताइए व्हाट इज लाइफ टू यू। यू विल नॉट स्पीक, बट यू विल जस्ट सिंग in form of a medley. If can you do that? मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं वो ना करूँ अभी, सॉरी। मैं ये डिक्लाइन कर रहा हूँ बिकॉज अभी मैं एक्चुअली अंदर से जो है ना, मेरे एसी बंद हो गया, लाइट नहीं है घर में ना, सो आई एम जस्ट हैविंग टू मच स्वेटिंग इनसाइड, सो आई एम सो सॉरी। पर मैं ऐसे कुछ गुनगुनाना चाहता हूँ मेरे पूरे वरांदा परिवार के लिए। स्पेशली जतिन ने एक बहुत अच्छा गाना मुझे बोला था मैं गाऊं, और कि ये मैसेज भी है सबको कि हम लोग कई बार ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ते भी हैं, और कई बार फेल हो जाते हैं, अक्सर हम लोग फेल हो जाते हैं, और ये फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, इस बेसिकली अ लर्निंग प्रोसेस। सो जतिन ने एक अच्छा गाना मेरे को बोला कि गाना आपने ज़रूर गाना है, सो मैं कुछ बिना म्यूज़िक के मैं गाना चाहूँगा इसको। कुछ लफ्ज़ की इस तरह का है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की
बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी की जो दुश्मन है, मेरे हिसाब से जो मैंने फील किया, रियलाइज किया है, वो हम अपने लोग हैं, मैं खुद हूँ। अगर मैं चाहूँ तो कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं ना चाहूँ तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। और हमारी जो जो सबसे बड़ा जो बंदिश है वो हमारी फैमिली से शुरू होता है। सो प्लीज 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 अपने फैमिली को मजबूत करिए, उनको भरोसा दिलाइए कि आप भी कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच, एंड दैट्स अबाउट इट। Thank you, Deepak. That was wonderful. And on that note, can we wrap up this show with a nice number from you? Sure. So that is the last number, final number, with a message to everybody who's watching us live. And I'm very, very grateful to everybody for being with us in this journey of Deepak. Thank you, everybody. Thank you so much. एक तो मैसेज आना बंद नहीं हो रहा है, एवरी सेकंड आई एम गेटिंग मैसेज। सो ऑब्वियसली थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मेरे ट्रैक को। सो वन मोमेंट प्लीज। So thank you so much once again for listening to me. Thank you so much, Music Veranda, for giving me the opportunity and believing on me that I can perform on this stage. And thank you, everybody, all the members of Veranda and the persons who are watching throughout the world. मेरे कुछ friends हैं लंदन में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, कनाडा में, मिडिल ईस्ट में, सभी लोग watch कर रहे हैं hopefully. So it's dedicating to everybody. Yeah. So one moment. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं सजाते रहना,
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। All right, dosto, so that was Deepak Da and Anila ji. Fantastic show. It was really rocking. And thank you so much to Anila ji. It is not really easy to host the full show. आपकी मेरे को तबीयत भी ठीक साथ नहीं लग रही है, लेकिन आपका मूड जो एकदम बातें करते करते आपने इतना कुछ बातें जो आपने करी हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं, ट्रस्ट में इट इज नॉट दैट इजी एंड यू आर लुकिंग ऑसम। बहुत अच्छे से आपने पूरा शो किया। एंड दीपक दा, बहुत आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी है। बहुत सारे लोगों का आपको लाइक्स मिले हैं, कमेंट्स मिले हैं, प्यार मिला है। इट इज लाइक फ्लडिंग विद लॉट मेनी कमेंट्स एंड लाइक्स। तो जब भी आपको टाइम मिलता है, प्लीज चेक इट आउट। एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू वंडरफुल पीपल, दीपक दे एंड अनिला रामपुरिया जी। बहुत बढ़िया आज पूरा का शो रहा। और हार्टी ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन जो भी हमारे म्यूजिक वरांडा में आए हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू किया तो शायद शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। इसी तरह आप अपना प्यार बांटते रहिए। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, मेरे गीतों में मेरी कहानियां, जिसमें हम नए नए सिंगर्स को लेकर आ रहे हैं जो कि उभरते हुए कलाकार हैं। और एक प्यारे से होस्ट के साथ में आज अनिला जी से आप मिले, दीपक जी से मिले। हम बहुत जल्दी आपको और भी इन लोगों से मिलवाएंगे जो कि हमारे म्यूजिक वरांडा की फैमिली है। और बहुत सारे नए लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस इज द होस्ट एंड दोस्त जीजे साइनिंग ऑफ फ्रॉम म्यूजिक वरांडा। Stay blessed, stay happy. Music is join Music Veranda. Thank you. Goodbye. Take care. Thank you so much, everybody, for giving me the opportunity. So see you very, very soon.